Good morning, students. Today's part is very important part. Yesterday we have already seen what is hybridization and the steps involved in hybridization. The next part of the chemical bonding is sp3 hybridization and examples of formation of some molecules which undergoes sp3 hybridization. Okay, so explain sp3 hybridization with diagram. sp3 hybridization with diagram. Okay, so what is sp3 hybridization? Simple definition: the process of mixing. Hybridization means mixing and recasting. Now in sp3 hybridization, which orbitals are mixed? S and p3. 1s orbital and 3p orbitals are mixed and recast. Now what is the definition of sp3 orbitals? The process of mixing and recasting of 1s orbital and 3p orbitals of the same atom. The process of mixing and recasting of 1s orbital and 3p orbitals of the same atoms to form tetrahedrally arranged 4 equivalent orbitals. इट इज़ नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ये डेफिनेशन मैंने बताई है. अभी टेक्स्ट बुक में क्या है देखो. इन दिस टाइप 1s and 3p orbitals having comparable energy mix and recast to form 4 sp3 hybrid orbitals. It is known as sp3 hybridization. सिंपल डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में दी है. मैंने डेफिनेशन क्या बताई है? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ 1s orbital and 3p orbitals of the same atom having comparable energies to form tetrahedrally arranged 4 equivalent orbitals. 4 equivalent orbitals बन जाते हैं, उसे कहते हैं sp3 hybridization. लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ी अलग है. क्या है? इन दिस टाइप 1s and 3p orbitals having comparable energy mix and recast to form 4 sp3 hybrid orbitals. s orbital is spherically symmetrical. s orbital का शेप कैसे होता है? स्पेरिकल होता है. s orbital is spherically symmetrical while the px, py and pz orbitals have two lobes, that is dumbbell shape. px, py and pz orbitals have two lobes and are directed along x, y and z axis. The 4 sp3 orbitals, hybrid orbitals, the 4 sp3 hybrid orbitals formed are equivalent in energy and shape. जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं मिक्स और रिकास्ट होने के बाद, जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं, उनकी एनर्जी और शेप कैसे होता है? इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है, विच हैज़ इक्वल एनर्जी एंड इक्वल शेप. ओके, दे हैव वन लार्ज लोब. They have one large lobe and one small lobe. They have one large lobe and one small lobe. Okay, with each other. They have one large lobe and one small lobe. They are at an angle of 109 degree 28 minute with each other. मैंने कल कहा था जिस मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? The molecule which undergoes sp3 hybridization has bond angle 109 degree 28 minutes with each other. So they are at an angle of 109 degree 28 minutes with each other in space and point towards the corners of a tetrahedron. So the orbitals forms an angle of 109 degree 28 minutes with each other in space and point towards the corners of tetrahedron. Methane, ammonia, water are examples. Methane, ammonia, water molecules are examples where the orbitals on central atom undergo sp3 hybridization. So which orbital? Carbon. In methane, the central carbon atom undergoes sp3 hybridization. In ammonia, the central nitrogen atom undergoes sp3 hybridization. And in water, central oxygen atom undergoes sp3 hybridization. But
these three molecules having different bond angles. Why? Because of in methane, carbon does not containing lone pair of electron, but in ammonia, nitrogen atom containing one lone pair of electron and one lone pair of electron, and in water molecule, oxygen atom containing two lone pair of electron. And due to the presence of lone pair of electron, the repulsion between lone pair increases, and that's why bond angle also decreases. Repulsion increases and bond angle decreases. Okay, so these are the examples of sp3 hybridization, मीथेन, अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल. ये तीनों एग्जाम्पल अभी हमें आगे देखने हैं. तीनों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है वो देखना है हमें. सो यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो. 2s ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल. s का एक है और p के तीन है. p के कौन से तीन है? px, py और pz. s का एक ही ऑर्बिटल है, वो है स्पेरिकल सिमेट्रिकल. px का एक है, वो दो लोब है. देखो, एक बैक साइड में, एक फ्रंट साइड में है. py का py ऑर्बिटल के दो लोब है, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में. और pz के दो लोब है, एक ऊपर है और एक नीचे. ओके, दिस इज द डम्बेल शेप. ये शेप कैसा है? डम्बेल शेप. अब ये चारों ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं और टेट्राहेड्रली अरेंज 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बन जाते हैं. देखो यहाँ पर वन स्मॉल लोब एंड वन लार्ज लोब, वन स्मॉल लोब, वन लार्ज लोब. लार्ज लोब देखो, स्मॉल लार्ज लोब दिख रहे हैं. okay, so this is the tetrahedral arrangement of sp3 hybrid orbital and this can also be represented as, यहाँ पर लास्ट डायग्राम जो है वो वैसे भी आप डायग्राम निकाल सकते हैं. तो हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है. चार ऑर्बिटल, इक्विवेलेंट शेप और एनर्जी चारों की कैसी है? सेम है. ओके, नाउ दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद डायग्राम. नाउ एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अभी तीनों मॉलिक्यूल हमें देखने हैं. पहला देखना है मीथेन CH4, दूसरा अमोनिया NH3 और तीसरा है वाटर H2. फर्स्ट मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ मीथेन CH4 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ sp3 hybridization. नाउ आंसर. फर्स्ट पॉइंट, मीथेन CH4 मॉलिक्यूल हैज वन कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स. मीथेन मॉलिक्यूल में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं. मीथेन molecule has one carbon atom and 4 hydrogen atoms. The ground state electronic configuration of carbon, atomic number Z is equal to 6. The electronic configuration, ground state, now not excited state. The ground state electronic configuration, the ground state electronic configuration of carbon having Z is equal to 6 is 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0. Z में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए 2s में से व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4. जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड बनते हैं. तो ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? देखो, दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. ब्लॉक डायग्राम दिखाया हुआ है यहाँ पर. ग्राउंड स्टेट में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज. 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है. और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, px में एक है और py में एक है. तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं. मतलब कार्बन की वैलेंसी 2 है? नहीं, कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी. कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है. इसलिए 4 वैलेंसी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा. कहाँ से कहाँ जाएगा? 2s में से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाएगा. सो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिखाई है. एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज one of the electron from 2s orbital get promoted to vacant 2pz orbital and gives excited state electronic configuration. तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है गया, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए. ओके, सो देयरफॉर हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म आफ्टर एक्साइटेशन? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बन गए. अभी ये 2s और 2p ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे. 2s और 2p ऑर्बिटल मिक्स हो गए, एक साथ जुड़ गए. जुड़ जाने के बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया. 1s इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते. इनर ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, इसलिए इनर ऑर्बिटल वैसे ही रह गया. और आउटर ऑर्बिटल कौन है? वैलेंशियल में जो ऑर्बिटल है उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है. तो 2s और 2px, 2py और 2pz में हाइब्रिडाइजेशन हो गया और मिक्स हो गए, रिकास्ट हो गया और 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बन गए. सो दिस इज 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, in order to form 4 equivalent bonds, in order to form 4 equivalent bonds with hydrogen, the 2s and 2p orbitals undergo hybridization. कौन से ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन होगा? The 2s and 2p orbitals undergo hybridization. One electron from the 2s orbital of carbon
दोनों भी ऑर्बिटल कार्बन के ही हैं, 2s ऑर्बिटल कार्बन का है और 2p ऑर्बिटल भी कार्बन का ही है, इसलिए एक ही एटम के ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन होता है, अलग अलग एटम के ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पर कार्बन एक ही है, कार्बन का 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल, इनमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया। सो इन ऑर्डर टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, 4 इक्विवेलेंट बॉन्ड्स with hydrogen, the 2s and 2p orbitals undergo hybridization. Point number 4, one electron from the 2s orbital of carbon atom is excited to the 2pz orbital, vacant 2pz orbital. इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए ऑर्बिटल वैकेंट होना जरूरी है। ओके, सो one electron from the 2s orbital of carbon atom is excited to the 2pz orbital, then the 4 orbitals, that is 2s, 2px, 2py and 2pz mix and recast to form 4 new sp3 hybrid orbitals. इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद ये 4 ऑर्बिटल कौन से, 2s, 2px, 2py एंड 2pz मिक्स और रिकास्ट होते हैं और 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, हैविंग सेम शेप एंड इक्वल एनर्जी. The 4 orbitals, that is 2s, 2px, 2py and 2pz mix and recast to form 4 new sp3 hybrid orbitals having same shape and equal energy. They are maximum apart and have tetrahedral geometry. उनकी ज्योमेट्री क्या होती है? These orbitals, sp3 hybrid orbitals having tetrahedral geometry with bond angle, which bond angle? H dash C dash H bond angle of 109 डिग्री 28 मिनट्स. मैंने पहले भी बताया था, दोबारा मैं बता रहा हूँ. द मॉलिक्यूल विच अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन हैज बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स. लेकिन उसमें लोन पर नहीं होगा तो बॉन्ड एंगल उतना होता है. ओके, सो with bond angle H dash C dash H bond angle of 109 degree 28 minutes. Okay, each hybrid orbital contains one unpaired electron. हर हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? देखो ना, 2s में एक है, 2px में एक है, 2py में एक है और 2pz में एक है. सो ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल contains one unpaired electrons. The 4 sp3 hybrid orbitals of carbon, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के हैं. The 4 sp3 hybrid orbitals of carbon with one electron overlap axially with the 4 sp3 hybrid orbitals of carbon with one electron overlap axially with 1s orbital of 4 hydrogen atoms. What is the electronic configuration of hydrogen? 1s1. So हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल में. So 1s ऑर्बिटल का शेप क्या होगा? 1s orbital has shape spherical. So the 4 sp3 hybrid orbital with one electron overlap axially with 1s orbital of 4 hydrogen atoms to form 4c-h sigma bonds. Thus in methane molecule there are 4c-h bonds formed by sp3-s overlap. कौन सा ओवरलैप होता है? C-H बॉन्ड कैसे बनता है? sp3 का ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s है. सो देर आर 4 C-H bonds फॉर्म बाय द sp3-s ओवरलैप. ओके, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है. देखो, पहला स्पेरिकल शेप किसका है? 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल. और ये अगली डायग्राम दी है वो कौन है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ये डायग्राम हमने अभी अभी देखी. देखो, यही डायग्राम हमने वहाँ पर यहाँ इस डायग्राम में दी है. सो दिस इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन. फर्स्ट डायग्राम किसकी है? 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन है. सेकंड डायग्राम दैट इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन. 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 दिखाने हैं, 4 नहीं दिखाए हैं. 4 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो जाएंगे और बन जाएगा दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल. ओके, और बॉन्ड एंगल कितना है? ये जो बाजू में जो डार्क कलर के बॉल दिए हैं वो हाइड्रोजन है और सेंट्रल में जो है वो है कार्बन. ओके, सो बॉन्ड एंगल H-C-H बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट. ओके, सो दिस इज formation of methane molecule on the basis of sp3 hybridization. Now explain the formation of ammonia molecule on the basis of sp3 hybridization. Explain the formation of ammonia molecule on the basis of sp3 hybridization. Now ammonia containing 1 nitrogen and 3 hydrogen atoms. बराबर है ना? अमोनिया NH3 molecule has 1 nitrogen and 3 hydrogen atoms. The ground state electronic configuration of nitrogen having atomic number Z is equal to 7, and the electronic configuration of nitrogen is 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1.
अभी p ऑर्बिटल में, p सबशेल में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड बनते हैं। कार्बन कंटेनिंग 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आफ्टर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल टू pz ऑर्बिटल। 2s में से एक इलेक्ट्रॉन टू pz में एक्साइट करने के बाद 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बन गए। शुरू में ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना पड़ा। एक्साइट कब होता है इलेक्ट्रॉन? जब ऑर्बिटल वैकेंट हो, तब। यहाँ पर ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा। ओके, सो द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन Z is equal to 7 is 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 and therefore the electronic configuration of nitrogen diagrammatically represent किए। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ग्राउंड स्टेट में देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2px में एक है क्लॉकवाइज, 2py में एक है क्लॉकवाइज, 2pz में एक है क्लॉकवाइज। ओके, अभी क्या होगा? एक्साइड इलेक्ट्रॉन करने के लिए स्पेस नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद कौन से ऑर्बिटल मिक्स होंगे? इनर ऑर्बिटल मिक्स नहीं होते। इनर ऑर्बिटल डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। हु इज द इनर ऑर्बिटल? 1s ऑर्बिटल इज द इनर ऑर्बिटल, so that's why it does not take part in hybridization. So which orbital take part in hybridization? 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल undergoes sp3 hybridization. तो 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बन गए। 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनने के बाद उस ऑर्बिटल में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर है। देखो दिख रहा है, एक क्लॉकवाइज 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, से कहते हैं लोन पेयर, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 3, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, the ground state electronic configuration explain the observed valency of nitrogen in NH3, which is 3. What is the valency of nitrogen in the ground state of nitrogen? 3, because of 3 unpaired electron. नाइट्रोजन के ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या एक्सप्लेन करती है? ऑब्जर्व वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की ऑब्जर्व वैलेंसी कितनी है? 3 है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ओके, फोर्थ पॉइंट फिर से देखो, थर्ड पॉइंट, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन द ऑब्जर्व वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया विच इज 3. Fourth point, the 2s, 2px, 2py and 2pz orbital of nitrogen atom mix and recast. नाइट्रोजन के कौन से ऑर्बिटल मिक्स और रिकास्ट होते हैं? 2s ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल एंड 2pz ऑर्बिटल्स of nitrogen atom mix and recast to form 4 sp3 hybrid orbitals of equivalent energy. 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कैसी होती है? इक्विवेलेंट एनर्जी होती है, वो ऑर्बिटल बन जाते हैं। These orbitals are tetrahedrally oriented in space. These orbitals are tetrahedrally oriented in space. One of the sp3 hybrid orbital contains a lone pair of electron. इन 4 ऑर्बिटल में से, इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से एक है लोन पेयर। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 5, 3 हाफ फिल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। 4 है ऑर्बिटल, उसमें एक लोन पेयर है, तो बच गए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। द 3 हाफ फिल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम ओवरलैप एक्सियली विथ the 3 half-filled sp3 hybrid orbitals of nitrogen atom overlap axially with half-filled 1s orbital of 3 hydrogen atoms, 3 different hydrogen atoms. अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। तो नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने? 3। हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ जिसका शेप कैसे होगा? स्पेरिकल। हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ एक्सियली ओवरलैपिंग करते हैं, और एक्सियली ओवरलैपिंग करने के बाद N-H बॉन्ड बनता है। ओके, सो द 3 हाफ फिल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम ओवरलैप एक्सियली विथ half filled 1s orbital of 3 different hydrogen atoms to form 3 N-H sigma covalent bonds. तो N-H sigma covalent bond कैसे ओवरलैपिंग करते हैं? sp3-s ओवरलैप करने के बाद N-H 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। कौन सी ओवरलैपिंग? कार्बन में भी 4 C-H कोवैलेंट बॉन्ड बन गए। कौन सा ओवरलैप हुआ है वहाँ पर? sp3 और s, sp3 कार्बन का
और s हाइड्रोजन का, है ना। कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के 4 1s ऑर्बिटल, तो ओवरलैप किस में हुआ, sp3 और s। यहाँ पर भी कौन किस में ओवरलैप हो रहा है, नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल, 3 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल, तो ओवरलैप है sp3s ओवरलैप एंड इट प्रोड्यूसेस सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सो सिंस देर इज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी देखो बॉन्ड एंगल कैसे डिक्रीज हो जाता है। टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिस मॉलिक्यूल में होता है उस मॉलिक्यूल का टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन अमोनिया में बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, बॉन्ड एंगल हो जाता है 107 डिग्री 18 मिनट्स। ओके, तो क्या होता है देखो यहाँ पर, सिंस देर इज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑफ द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर होने की वजह से, सिंस देर इज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑफ द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन, देर इज रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर। ये लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर को रिपल करता है, रिपल करने की वजह से वो बॉन्डिंग पेयर इनवर्ड हो जाते हैं, नीचे झुक जाते हैं, बॉन्डिंग पेयर थोड़े से नीचे झुक जाते हैं। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एज अ रिजल्ट द एच डैश एन डैश एच बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस फ्रॉम रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट टू 107 डिग्री 18 मिनट्स। इसीलिए लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर में रिपल्शन बढ़ जाने की वजह से the regular tetrahedral bond angle is reduced from 109 degree 28 minute to 107 degree 18 minutes. So that's why the geometry of ammonia molecule, अभी ammonia molecule की geometry tetrahedral नहीं है क्योंकि रिपल्शन हो गया लोन पेयर की वजह से, इसलिए ज्योमेट्री क्या हो जाती है, द ज्योमेट्री ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इज पिरामिडल और डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। इसलिए अमोनिया मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है, पिरामिडल होती है और डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। ओके, सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ऐसे हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा है ना, वैसे ही यहाँ पर भी हाइड्रोजन दिखाने हैं। हाइड्रोजन रह गए इस सर्कल में, हाइड्रोजन H H H और सेंट्रल में कार्बन दिखाना है। ओके, यहाँ पर देखो सेंट्रल में क्या है, नाइट्रोजन है और बाजू में क्या है, हाइड्रोजन है, ऊपर लोन पेयर है। ओके, सो फर्स्ट डायग्राम इज 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, स्पेरिकल है, नॉन डायरेक्शनल है, स्पेरिकल होने की वजह से वो नॉन डायरेक्शनल है। s ऑर्बिटल्स आर स्पेरिकली सिमेट्रिकल एंड नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ओके, सो 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन लेने यहाँ पर 3 लिखना है, वहाँ पर 3 लिखना भूल गया मैं, यहाँ पर भी 4 लिखना है बिकॉज ऑफ 4 हाइड्रोजन ना, इसलिए यहाँ पर 4 लिखना है। यहाँ पर ये जो स्पेरिकल डायग्राम है ना उसके आगे पहले 4 लिखना है बिकॉज ऑफ 4 हाइड्रोजन आइटम्स, और यहाँ पर स्पेरिकल डायग्राम जो है इसके पहले 3 लिखने हैं बिकॉज ऑफ 3 हाइड्रोजन, 3 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन आइटम। ओके, तो ये स्पेरिकल 1s ऑर्बिटल है और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल गलत है, ये डायग्राम गलत है, मैंने गलत निकाली डायग्राम। ये डायग्राम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की है। कैसे डायग्राम निकालनी है, देखो ये ऐसे डायग्राम निकालनी है, ये डायग्राम। ओके, ये ऊपर का है वो लोन पेयर है और ये नीचे के है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर डायग्राम, सॉरी दैट इज़ माय मिस्टेक, ये डायग्राम गलत है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की डायग्राम नहीं है ये। ओके, तो वो डायग्राम आप करेक्शन कर लो। और हाँ देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल बराबर निकाला है मैंने। ओके, मॉलिक्यूल लोन पेयर है ऊपर, ऐसे ही डायग्राम यहाँ पर सिर्फ विदाउट हाइड्रोजन, ये डायग्राम, ये जो लास्ट डायग्राम है ना, ये लास्ट डायग्राम यहाँ पर निकालनी है, सिर्फ हाइड्रोजन उसे अटैच मत करो। ओके, ये हाइड्रोजन अटैच किया ना, वो हाइड्रोजन अटैच मत करो, वही डायग्राम यहाँ पर आ जाएगी। ओके, ओके, सो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग होने के बाद, एक्सियल ओवरलैपिंग होने के बाद ये अमोनिया मॉलिक्यूल बन गया। ऊपर जो है वो है लोन पेयर और नीचे है ये N-H है ना, इसे कहते हैं बॉन्डिंग पेयर। तो ये लोन पेयर इस बॉन्डिंग पेयर को क्या करता है, ढकेलता है नीचे, नीचे ढकेलने की वजह से रिपल्शन हो जाता है उनमें। अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन मतलब खींचना और रिपल्शन मतलब दूर फेंकना। सो ये लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर को रिपल करता है, इसलिए वो नीचे ढकेल जाता है और बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। ओके, नाउ एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वाटर मॉलिक्यूल में, यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल का मैंने
sp3 डायग्राम टेक्स्ट बुक में भी वैसे ही है शायद, नहीं वैसे नहीं होगी, देखो टेक्स्ट बुक में वैसे ही दिखाई है क्या, नहीं गलत है, मैंने डायग्राम गलत निकाली है, देखता हूँ बाद में मैं। ओके, सो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। Explain the formation of water molecule on the basis of sp3 hybridization. Okay, now water H2O molecule has one oxygen atom and two hydrogen atoms. Water means H2, it containing one oxygen and two hydrogen atoms. Okay, now the ground state electronic configuration of oxygen having atomic number 8, oxygen having atomic number Z is equal to 8, and the electronic ground state electronic configuration of oxygen is 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 and 2pz1. यहाँ पर भी अभी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा। ओके, सो व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, 1s2, 2s2, 2px2, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 1 है, 2pz में 1 है। सो इट इंडिकेट्स दैट द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग 2 लोन पेयर्स एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ओके, एंड दैट्स वाई द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4। कार्बन को कहते हैं कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। सो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन is 2 because of presence of 2 unpaired electron. Okay, now the electronic configuration of oxygen, ground state दिया है देखो, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 2 है, 2py में 1 है, 2pz में 1 है। ओके, ना अभी इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन होगा। किस में हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस में होगा, 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 1s ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो दैट्स वाई 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल एंड 2pz ऑर्बिटल एंड 2s ऑर्बिटल undergoes sp3 hybridization. Okay, so this is diagrammatic representation of electronic configuration. The third point, the ground state electronic configuration. Explain the ground state electronic configuration. Explain the discrete valency of oxygen in water molecule, which is 2. The ground state electronic configuration of oxygen explains the observed valency of oxygen in water molecule, which is 2. ऑब्जर्व वैलेंसी क्या है ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंशियल में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए व्हाट इज द ऑब्जर्व वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल इज 2। द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। द 2s, 2px, 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम मिक्स एंड रिकास्ट। कौन से ऑर्बिटल मिक्स होता है, कौन से ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन होता है, 2s ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल अंडरगोस 2x ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल एंड 2pz ऑर्बिटल एंड 2s ऑर्बिटल। देखो जमलिंग हो रहा है, क्या जमलिंग हो रहा है, विच ऑर्बिटल्स अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, द 2s ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल एंड 2pz ऑर्बिटल of oxygen atom mix and recast to form 4 sp3 hybrid orbitals of equivalent energy. कितने ऑर्बिटल बन जाते हैं, 4। उस 4 ऑर्बिटल में 2 लोन पेयर होते हैं, 2 अनपेयर होते हैं। सो अगे वंस अगेन द 2s, 2px, 2py and 2pz orbitals of oxygen atom mix and recast to form 4 sp3 hybrid orbitals of equivalent energy. These orbitals are tetrahedrally oriented in space. These orbitals are tetrahedrally oriented in space. 2 of the sp3 hybrid orbital contain lone pair of electron. इस 4 में से 2 ऑर्बिटल में क्या होते हैं, लोन पेयर। द 2 ऑफ द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ अभी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो 2 हाफ फील्ड, उसे कहते हैं अनपेड मीन्स हाफ फील्ड। द 2 हाफ फील्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, 2 half-filled sp3 hybrid orbitals of oxygen atom overlap axially with half-filled 1s orbital of 2 hydrogen atoms. The 2 half-filled sp3 hybrid orbitals of O atom overlap axially with half-filled 1s orbital of 2 hydrogen atoms to form 2O-H bond, 2O-H sigma covalent bond, by which overlap, sp3s overlap. By sp3s overlap, it produces 2O-H
sigma covalent bond. Okay, now since there are two lone pairs of electrons, bond angle अभी decrease हो जाता है. कितना होता है bond angle? 104 डिग्री 35 मिनट्स. रेगुलर बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट्स. और वो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. द बॉन्ड एंगल रिड्यूस टू 104 डिग्री 35 मिनट्स. सो सिंस there are two lone pairs of electrons in two of the sp3 hybrid orbitals of oxygen, there is repulsion between lone pair and lone pair. There is a repulsion between lone pair and bonding pair of electrons. Due to the presence of two lone pairs of electrons in sp3 hybrid orbital of oxygen, there is repulsion between lone pair and bonding pair of electrons. As a result, the H-O-H bond angle is reduced from regular tetrahedral angle, that is 109 degree 28 minute to 104 degree 35 minutes, and geometry becomes, the geometry of water molecule is angular or V shape. The geometry of water molecule becomes angular or V shape. Okay, so this is the diagrammatic representation. तो ये है 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये ऐसे निकालनी है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. और ये सिर्फ विदाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं दिखाना है. ये डायग्राम जो है ना, वो डायग्राम यहाँ पर निकालनी है. यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन अटैच मत करो. और 1s ऑर्बिटल यहाँ पर हाइड्रोजन कितने दिखाने हैं? 2. मिथेन में 4 हाइड्रोजन दिखाए थे, अमोनिया में 3, वाटर में 2 हाइड्रोजन. इसलिए ये स्पेरिकल शेप है ना, उससे पहले 2 लिखो यहाँ पर. सो इट प्रोड्यूसेस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. ओके, sorry, water molecule having geometry V shape or angular. So this is the formation of water molecule on the basis of sp3 hybridization. Okay, thank you. This is today's part.